وبركاته. الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. میں بہت شکر گزار ہوں جناب مفتی صادق صاحب قاسمی کا کہ مجھے اس لائق سمجھا کہ میں آپ بہن بیٹیوں کے بیچ چند باتیں لب گشائی کرنے کا موقع ملا. اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے. پروردگار نے ہم سب کو اس نبی امی کے جلسے کی نسبت پر ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یکجا ہوئے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرمائے. دین اور دنیا میں بس صرف نیت کا فرق ہے. بہت سارا کام ایسا ہے جس کا تعلق بظاہر دنیا سے ہے، لیکن حسن نیت کے بنا پر وہ کام دین والا ہو جاتا ہے. آپ دن بھر گھر کا کام کرتی ہے، آپ کپڑے دھوتی ہے، کھانا بناتی ہے، بچوں کی تربیت کرتی ہے، گھر کی صفائی کرتی ہے. یہ بظاہر اس کا تعلق دنیا سے ہے، دنیا داری سے ہے. لیکن آپ نے اپنی نیت کو درست کر لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طہارت نصف الایمان، کہ پاکی صفائی آدھا ایمان ہے. یہ اللہ کے نبی کی حکم کو میں بجا رہی ہوں اور اس پہ عمل کر رہی ہوں، چونکہ یہ نبی کی سنت ہے اور نبی کا حکم ہے. نبی علیہ السلام نے پاکی اور صفائی کو آدھا ایمان کہا. ہم اس لیے اپنے گھر کو صاف ستھرائی کر رہے ہیں، ہم اس لیے اپنے کپڑے کو صاف کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا حکم ہے. یہ دنیا کا کام ہمارا دین کا کام ہو گیا. اللہ ہم کو اس میں بھی اجر عطا فرمائے گا. بظاہر ہم اپنے گھر کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں، شوہروں کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن حسن نیت کے بنا پر وہ میرا عمل اللہ والا ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی وجہ سے یقینی طور پر ہم ثواب کے حقدار ہوں گے. اسی طریقے سے بہت سارا کام ایسا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے، لیکن نیت کی گڑبڑی کی بنا پر، نیت کی فساد کی بنا پر وہ کام دنیا کا ہو کر رہ جاتا ہے. اس لیے چاہے ہم کام دنیا کا کریں چاہے آخرت کا کریں، سب سے پہلے ہماری نیت درست ہونی چاہیے. اگر ہماری نیت ہی درست ہوگی تو دنیا کا کام بھی آخرت والا ہو جائے گا، اور آخرت والا عمل اس کے اندر، آخرت والا عمل اللہ اس کے اندر اجر عطا فرمائے گا. چونکہ ہماری نیتیں درست ہے، ہماری نیتوں میں خلوص ہے، ہمارے عمل کا مدار اخلاص پر ہے، اس لیے وہ عمل کے اندر اللہ اجر عطا فرمائے گا.
मेरी बहनों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा। यहाँ कोई तखसीस नहीं है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, अगर ईमान वाली है, अगर उसके दिल में ईमान है, फरमाया कि अगर आमाले सालिहा करती है तो अल्लाह उसके दुनियावी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। अल्लाह उसके जिंदगी को मुज़य्यन कर देंगे। दुनियावी जिंदगी को मुज़य्यन करने के मतलब आराम और सुकून वाली जिंदगी अल्लाह अता फरमाएंगे। हमारी बात नहीं है कि मर्द नमाज पढ़ेंगे तो उनको ज्यादा सवाब मिलेगा, औरत नमाज पढ़ेगी तो उसको कम मिलेगा। जो भी दीन का शोबा है, अगर उस पर अमल करती है तो अल्लाह उन्हें भी अज्र से नवाजेगा, दुनिया भी संवारेगा और आखिरत को भी संवार देगा। आप याद रखिए, जितने भी कामयाब इंसान और जितने भी कामयाब मर्द इस दुनिया में गुजरे हैं, आप इसकी जिंदगी का मुताला कीजिए, इसकी जिंदगी के ताइराना निगाह डालिए, तो आपको कहीं ना कहीं औरत का किरदार नजर आएगा। और मर्द को जब औरत संवारती है, मर्द को औजे सुरैया तक ये औरत पहुंचाती है, कहीं बीवी की शक्ल में, कहीं बेटा की शक्ल में, कहीं शौहर की शक्ल में, या कहीं भाई की शक्ल में। मतलब यह है कि किसी भाई को बहन ने संवार दिया, किसी शौहर को बीवी ने संवार दिया, किसी बाप को बेटी ने संवार दिया। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं हदीसों में कि वो कामयाब हुआ और उसकी कामयाबी के पीछे औरत का किरदार है। सबसे पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को ले लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जब वही आती है तो वही, चूंकि जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले मर्तबा वही लेकर आते हैं, तो वही किताब ना ला करके आप पसीना में शराबोर हो गए और आप अपने शरीक हयात हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आते हैं। आप कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे अपने आप पर डर महसूस हो रहा है, कहीं मैं हलाक ना हो जाऊं, मेरे दुनिया से जाने का वक्त लग रहा है। इस घबराए हुए घड़ी में, उस घबराए हुए वक्त में एक बीवी सहारा बनती है और हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, या रसूल अल्लाह, आप गरीबों के साथ इंसाफ करते हैं, आप बेवाओं के साथ मदद का मामला करते हैं, सहारा देते हैं कमजोरों को, भला आपके साथ ये कैसे हो सकता है कि आपको अल्लाह हलाक कर दे? आप दूसरे के दुख दर्द में काम आने वाले हैं, आप दूसरे के लिए सहारा बनते हैं, आप दूसरे को मदद करते हैं, ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह आपको इतनी खूबियों का मालिक होते हुए आपको हलाक कर दे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप इत्मीनान रखिए, आप आराम और सुकून के साथ बैठिए, अल्लाह आपकी मदद फरमाएगा। इतनी बात करने से सरकार मदीना इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली हो जाती है, सुकून मिल जाता है, इत्मीनान मिल जाता है। आप देखिए यहाँ पर मुश्किल की घड़ी में एक बीवी ने अपना क्या किरदार अदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए अभी मुफ्ती सादिक साहब कासमी दामत बरकातुहू ने अभी बयान फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि हर गोशे में हमारे लिए नमूना है, मिसाल है, हर एक इंसानियत के लिए है। कोई शौहर है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शौहर वाली जिंदगी को देखिए, कोई बीवी है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बीवियां हैं उनके क्या रद्द अमल है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या बर्ताव है। ये हमारे लिए सबक है, हमारे लिए नसीहत है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए मिसाल है। हम उसको अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, हम उसके ऊपर चलने की कोशिश करेंगे, अमली जिंदगी में लाएंगे। यकीनी तौर पर जो भी रास्ता जन्नत में जाता है तो वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों से गुजर कर ही जाता है। कोई अगर चाहेगा कि हम जन्नत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से हट कर चले जाए, सुन्नत रसूल को नजरअंदाज करके, सीरत नबी को बालाए ताक रख करके हम चले जाएंगे, याद रखिए वो ये उसका खाम ख्याली है, उसका सोच गलत है। वो नहीं जा सकते जब तक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नतों को अपनी जिंदगी में नहीं लाते। तो यहाँ एक देखिए, एक
मर्द शौहर के जिंदगी में, कामयाब शौहर और कामयाब इंसान की जिंदगी में औरत का किरदार बीवी की शक्ल में। इसी तरीके से हजरत अबू बकर, अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जब आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास आते हैं और हिजरत का हुक्म हुआ, जब हिजरत के लिए निकल पड़ते हैं तो हजरत अस्मा बिनते अबू बकर को हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि हम गारे सौर में जाते हैं, तुम वहां खाना उना लेकर के जो जरूरियात है उसको लेकर के आया करना। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालिद, उनको मालूम हुआ, वो आए और तलाशी लिया, पूछा कि कहाँ हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इधर आए हैं। हजरत अबू बकर कहाँ हैं? अस्मा बिनते अबू बकर को मालूम कि कहाँ हैं, लेकिन वो कह रही हाँ मालूम है लेकिन नहीं बताऊंगी। अब वो कहाफा ने तमाचा भी रसीद किया, नहीं बताओगे, जिस्म से जान निकाल देंगे। अस्मा बिनते अबू बकर कह रही है कि मैं जिस्म से जान निकाल सकती हूँ, अपनी जान आपके हवाले कर सकती हूँ, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अल्लाहु अकबर। जब अस्मा बिनते अबू बकर खाना लेकर के गई है तो उदास थी। सरकार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि अस्मा उदास क्यों हो, तुम्हारी शक्ल पर ये निशान कैसे है? पूरा माजरा सुनाया। अस्मा के आंख में आंसू आ जाता है। अल्लाहु अकबर। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक उनके सर पर रख करके दुआएं देते हैं। यहां भी देखिए इस कामयाब मुहिम के पीछे एक औरत का किरदार बेटी की शक्ल में है। मेरी बहनों, बहुत से वाकयात हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मुरादे मुस्तफा हैं, जिनको मांग मांग करके सरकार मदीना ने लिया अल्लाह से। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होते उमर होते। अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत उमर का क्या तरीकेकार था, वो अपने साथ में खादिम रखते। आज हम लोगों की कुछ आखिरत की परवाह नहीं, दीन की कोई परवाह नहीं, आखिरत की कोई फिक्र नहीं। हजरत उमर जैसे जलील कद्र सहाबी, जिनको नबी ने बसारत दिया, जिनको नबी ने मांग के लिया, वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या मिशन था, उनका क्या तर्ज अमल था कि वो खादिम रखते इसलिए कि कान में आकर कहे कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको कब्र की तारीखी इंतजार में है, आपको ये दुनिया छोड़कर जाना है, मलकुल मौत एक दिन आपके पास आएगा, नकीरैन के सवाल का जवाब आपको देना है। ये इसीलिए बार बार कहते ताकि ये दिल दुनिया में मशगूल ना हो जाए, ये दुनिया में लग करके आखिरत को फरामोश ना कर बैठे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद साल के बाद खादिम को अलग कर दिया तो लोग पूछे क्या हुआ, क्यों अलग कर दिया? कहने लगे अब दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, अब आखिरत की याद दिलाने के लिए काफी है, अब इस खादिम की जरूरत नहीं है। जो ही निगाह पड़ती है कब्र की तारीखी याद आ जाती है, जो ही निगाह पड़ती है मलकुल मौत का ख्याल आ जाता है कि हमें दुनिया से जाना है, जो ही निगाह पड़ती है मैदान महशर की तमाज़त वाली धूप का तस्वीर आ जाता है, इसलिए अब हमें इस खादिम की जरूरत नहीं है। मेरी बहनों, ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये नबी इस्लाम लाने से पहले उनकी जिंदगी जरा देख लीजिए। नबी के दुश्मन थे, ईमान वालों के दुश्मन थे, इस्लाम के खिलाफ हमेशा इनका मिशन रहता था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में तलवार लेकर बुरे इरादे से गए कि आज हम इस्लाम और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खात्मा कर देंगे, नऊज़ुबिल्लाह। रास्ते में किसी ने कहा अच्छा तुम्हारी बहन जो ईमान ले आई है, तुम दूसरे की फिक्र के लिए जा रहे हो? अरे तुम्हारी बहन जो ईमान ले आई, पहले अपने घर की तो खबर लो। इतना सुनना था, तैश में आ गए हजरत उमर और उल्टे पांव अपने बहन के घर गए। वहां देखा वाकई में ये बहन तो कुरान पढ़ रही है, आवाज आ रही है, कुरान की तिलावत की आवाज आ रही है, लेकिन बहन ने जो ही आहट महसूस किया कि उमर आ रहे, फौरन उठ करके अपना सारा जहां पर कुरान लिखा हुआ था
जिन जिन अशिया में तमाम को समेट कर रखने की कोशिश किया, लेकिन चूंकि कान में आवाज जा चुकी थी। अब हज़रत उमर कह रहे हैं कि आवाज कैसी थी? बोले कि ए उमर, ये कुरान की आवाज है, मैं कुरान पढ़ रही थी, कुरान की तिलावत कर रही थी। कहने लगे मुझे देखाओ। कहने लगे नहीं उमर, मैं तुझे नहीं दिखा सकती, तू इसलिए कि ये मेरा कुरान अल्लाह का कलाम है, पाक है, ये वही दिल देख, वही हाथ लगा सकता है जो खुद पाक होगा, वही जुबान पढ़ सकती है जो पाक होगी, तू नापाक है, तू नहीं पढ़ सकता है। उससे पहले बहुत सिताया, मारा पीटा, लाख कोशिश की, लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन कहने लगी मैं जिस्म से जान निकाल सकती, लेकिन अपने ईमान जो दिल में आ गया है उस ईमान से फिर नहीं सकती। अल्लाह अकबर। उनके पास ईमान की कीमत था, कदर उनके पास था, वो लोग कीमत और कदर जानते थे। और आखिर में क्या हुआ? कहने लगी मुझे भी पढ़ा दो, मुझे भी सुना दो। उनको पाक करने के बाद कुरान पढ़कर कौन सी आयत थी? सूरह ताहा की इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी। परवरदिगार फरमा रहे हैं ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए इन्ननी अनल्लाह, मैं ही परवरदिगार हूँ, मैं ही खालिक़े कायनात हूँ, मैं ही राज़िक़े दो जहां हूँ। ये सारी दुनिया की सारा निजाम मेरे दस्ते कुदरत में है। फअबुदनी, लिहाजा मेरी इबादत करो। खिलाने वाला मैं, पिलाने वाला मैं, सेहत देने वाला मैं, इबादत किसी और की, बंदगी किसी और की। इतना सुनना था, उमर का जिगर फट गया। अल्लाह अकबर। आंखों से आंसू जारी हो गया और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जो सर लेने के इरादे से चला था वो जाकर उनके कदमों में अपना सर डाल दिया। या रसूल अल्लाह, मुझे आप कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा दीजिए। आप देख लीजिए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीवारों की क्या तर्ज अमल है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह नबूवत ने इस तरह से तरबियत किया था। मुमकिन नहीं है दुनिया इधर से इधर हो जाए, वो दीवाने, वो तरबियत याफ्ता सहाबा आपके एक हुक्म से फिर जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो हमारे माँ बहनों को, बेटियों को हक मिला। उससे पहले ये बेटियां मजलूम थी, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। मैंने ही खुदा को कुरान कह रहा है, जब उनको लड़की की बशारत दी जाती तो वो लोग बोझल हो जाते, वो लोग सलाम कलाम मिलना जुलना बंद कर दिया करते थे। ये मिजाज था। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, फरमाया या इबादल्लाह कूनू इखवाना, ऐ अल्लाह के बंदे भाई भाई बन के रहो, भाई भाई बनकर जिंदगी गुजारो। याद रखो जिसके पास 3 बेटियां हैं वो रुसवाई का सामान नहीं है, वो जिल्लत का सामान नहीं है, बल्कि ये तो जन्नत की चाबियां हैं। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि जिसके घर में 3 लड़की है, अगर उसको तालीम से आरास्ता किया, तरबियत से आरास्ता किया, शादी ब्याह कर दिया, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जन्नत में जिस दरवाजे से इसका जी चाहेगा कहेगा जा जन्नत में चला जाए। अल्लाह अकबर। अगर किसी के पास लड़का हो, लड़की हो और एक ही को तालीम देने की ताकत हो, हैसियत हो, तो कहता है कि पहले बेटी को पढ़ाओ, लड़की को तालीम दो। इसलिए कि लड़का पढ़ेगा तो एक फर्द पढ़ेगा और लड़की पढ़ लेगी तो एक घर पढ़ लेगा, एक खानदान पढ़ लेगा। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो अपनी बेटी को तालीम देगा, तरबियत से आरास्ता करेगा और इज्जत के साथ शादी ब्याह कर देगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन तहज्जुद गुजार लाइन में लगे होंगे, बड़े बड़े हाजी नमाजी लाइन में लगे होंगे, लेकिन उस बेटी की तरबियत करने वालों से हुक्म होगा कि कहाँ हो बेटी की तरबियत करने वालों, कहाँ हो बेटी को दीनी तालीम से आरास्ता करने वालों, आज तुम्हें लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, जन्नत के जिस दरवाजे से तेरा जी चाहता है चला जाए। एक सहाबी रसूल खड़े हो गए, प्यारे आका अगर किसी के घर में 2 बेटी हो, उनके साथ क्या मामला किया जाएगा, उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा?
अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर वो भी पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, दीनी तालीम से आरास्ता करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें भी हुक्म देगा कि तुम भी, तेरा भी जी जिस दरवाजे से चाहता है चला जाए। फिर जैसे साहबी करोगे या रसूल अल्लाह, अगर एक बेटी हो, किसी को एक बेटी हो अगर, फरमाया उसके साथ भी यही मामला होगा, उसके साथ भी यही बर्ताव किया जाएगा, उसके साथ भी यही मामला किया जाएगा। तो मेरी बहनों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से ये इज्जत, ये वक़ार मिला है, वरना उससे पहले तो लोग उनको मनहूस समझते थे, नहुसत का सामान समझते थे, जिल्लत और रुसवाई का सामान समझते थे। अल्लाह के नबी आए तो माओं को इज्जत मिली, बेटियों को मकाम मिला। सरकार मदीना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहेती बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जिंदगी हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए उसवा है, मिसाल है। उन्होंने किस तरीके से अपनी जिंदगी गुजारी, पर्दे का कितना ख्याल किया, यहाँ तक कि मौत के वक्त में, मौत से पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं कहा करके नहा वहा करके और बापर्दा होकर के ले जाती है। इतना एहतमाम था। लेकिन जब कोई ठान लेता है, इरादा आज़म मुसम्मम कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी उसके लिए रास्ता बना देते हैं, उनके लिए सबील पैदा कर देते हैं। इसलिए बहनों, दुनिया तो किसी न किसी तरीके से कट जाएगी, लेकिन असल आखिरत की जो तैयारी है इस दुनिया में इसीलिए भेजा है। अगर यहाँ से हम खाली हाथ गए तो हम तो यहाँ मुशक्कत वाली जिंदगी गुजार ही रहे, वहाँ भी मुशक्कत वाली जिंदगी। इसलिए अगर अल्लाह की रजा चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है, उनकी जो जिंदगी है, वो हमारे लिए नमूना है। उनके जो पैगामात हैं, उनके जो तरीक़े हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम उसको अपनी ज़िंदगी में लाते हैं, हम उसको अपनी ज़िंदगी में दाखिल करते हैं और सुन्नत नबी को अपना ओढ़ना बिछौना बनाते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहया बिसुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअती शहीद, कि जो एक सुन्नत को अपनी जिंदगी में लाएगा, एक सुन्नत पर अमल करेगा। ऐसे गए गुजरे हुए दौर में हर तरफ फितना है, फसाद है, बुराई है, लेकिन वो एक सुन्नत को जिंदा कर रहा है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको 100 शहीद का सवाब अता किया जाएगा। अल्लाहु अकबर। 100 शहीद, एक शहीद इसको कहा जाता है जो जिस्म का आखिरी कतरा तक अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह के रास्ते में बहा दे, उसको शहीद कहा गया। ना उसके ऊपर जनाजा है, ना उसको कफन है। अल्लाह उसको बेहिसाब जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो मेरी सुन्नत को जिंदा करेगा, एक सुन्नत पर अमल करेगा, 100 शहीद का सवाब दिया जाएगा। इसलिए मेरी बहनों, आपका आज का ये जलसा सीरतुन नबी आपको पैगाम दे रहा है कि आखिर आज जो बेरारवी है, आज जो जिल्लत और रुसवाई के गार में जा रहे हैं, ये सब इसलिए है कि हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी को छोड़ा, हमने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके से मुंह मोड़ा। आज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलशता पैदा। आज भी अगर हमारा तरीका जिंदगी बदल जाए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके के मुताबिक हमारा अमल हो जाए, तो अल्लाह वो दिन दूर नहीं है, वो दिन हमारे लौटा देंगे और वो इज्जत वाली जिंदगी हमें देंगे। दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी हमारा अच्छा। अल्लाह, हम बहुत फिर दोबारा शुक्रगुजार है जनाब मुफ्ती सादिक साहब कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा। अल्लाह मुफ्ती साहब तो सेहत में, उम्र में बरकत दे, और जो इदारा चला रहे हैं इस इदारे में अल्लाह दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की से नवाजे। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी